चलिए, good evening students. Let's start with the third class here, third lecture on basics of accounting. What we have seen in the last lecture is different concepts. हमने अलग अलग concepts देखे बेटा. What are assets, what are liabilities, what is the transaction, what is bookkeeping. Along with that, we have seen various types of assets and various types of liability. At the same time, we have seen in the last lecture what is the cash discount and trade discount, and when it is usually taken as far as cash discount and trade discount is concerned. Now, if you see the screen right now, you can see that there is an equation which is called as accounting equation. इसको बुलाते हैं. क्या आपको दिख रहा है वहां पे net worth or owner's equity or capital? And here is an equation in the green shade there. You can see net worth is equal to owner's equity is equal to capital. Net worth को ही क्या बोला जाता है students? Owner's equity. The same is called as capital, and the equation is owner's equity or capital is equal to debt total equity, that is assets, minus creditors equity, that is liabilities. इसको अगर simplify करें बेटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Simply it is written as total assets is equal to total liabilities. That is the first accounting equation. कभी भी याद रखिए, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है. जैसे हम बुलाते हैं ना कि 0, 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स है, नंबर्स है, उसी तरह से ये अकाउंट्स का बेसिक इक्वेशन है. और क्या है? इट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. यानी एट ऑल टाइम्स व्हेनेवर a business is going to introduce any kind of assets, obviously it is going to have a simultaneous liability, and hence total assets is equal to total liabilities. At the same time, you can say classify this equation. total assets को as it is रखते हैं. अब total liabilities किस तरह से bifurcate कर पाते हैं? तो total liabilities को हम bifurcate कर पाएंगे. First is capital, that is introduced by the owner, invested by the owner, plus outsiders liabilities. तो ये दो चीजें यहां पे की जा सकती है. एक तो आपका कैपिटल और दूसरा आउटसाइडर्स liabilities. So this is what the accounting equation, my dear. Total assets is equal to total liabilities, और इसको हम बुला सकते हैं total assets is equal to capital plus outsiders liabilities. और जब आप उसको सिर्फ कैपिटल बुलाएंगे तो कैपिटल के बजाय आप इसको बुला सकते हैं शेयर कैपिटल. जब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है तो यही शेयर कैपिटल बन जाता है. जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म रहती है, दैट इज द बिजनेस विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड पर्सन, एंड बिजनेस विच इज ओन्ड एंड स्टार्टेड बाय 2 or more people, तो वहां पे ये सिर्फ कैपिटल बुलाया जाता है. सो कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. तो जब आप बुलाते हैं कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो दूसरा इक्वेशन बनता है. लायबिलिटीज को हम बाफिकेट करते हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इंटरनल लायबिलिटीज मींस द कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, and external liability is nothing but the amount which is borrowed by the business from outsider party. अब ये outsiders liability क्या होती है? तो outsiders liability हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा. ये देखिए, ये जब हम फिक्स्ड liability की बात करते हैं, यहां पे आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है फिक्स्ड liability और लॉन्ग टर्म liabilities, जहां पे हमने बात की थी कि these are nothing but the liabilities which are there for the business for a longer period of time. तो ये फिक्स्ड liability को ही हम बाफिकेट करते हैं, that is capital plus outsiders liabilities. But at the same time, when we talk about fixed liabilities, it is long term liabilities. ये fixed liability को हम क्या बुलाते हैं? long term liabilities. Just एक छोटा सा bifurcation आपको यहां पे बता रहा हूं मैं. पहले आप क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस शुरुआत करने के लिए बेटा? that is capital, right? तो ये तो लॉन्ग टर्म ही है. कैपिटल के साथ और आप बाहर से फंड उठा सकते हैं. so you can say immediately it is a term loan or a bank loan which is taken from a bank, say ICICI Bank, SBI, HDFC or any other bank. Along with that, you can take a loan from other
business as well, or you can take loan from your friends, your relatives. So that is again a loan, but it is borrowed from outsiders. तो ये combination कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं. So combination क्या हुआ? That total assets is equal to total liabilities, और total assets is equal to capital plus outsiders liability. Just एक simple चीज आपको यहां पे बताता हूं ताकि आप समझ जाए. एक छोटा सा टेबल मैं यहां पे कर रहा हूं, और मान लीजिए यू स्टार्टेड अ बिजनेस विथ वर्थ रुपीज 5 करोड़. आपने बिजनेस चालू किया 5 करोड़ का. अब इधर मैं लेफ्ट में लिखता हूं लायबिलिटी और राइट में लिखता हूं असेट्स बेटा. तो आपने बिजनेस कितने रुपए के साथ चालू किया? विथ 5 करोड़. अब ये 5 करोड़ आपने मान लीजिए कैश और बैंक बैलेंस में दिए. कैश में दिया 1 करोड़ और बैंक बैलेंस में आया 4 करोड़. कैन आई कॉल इट योर बिजनेस असेट्स? यस और नो स्टूडेंट्स? हम इसको बिजनेस असेट्स बुलाएंगे या नहीं? क्योंकि बिजनेस के पास कैश कितना है? 1 करोड़ है. बैंक बैलेंस कितना है? 4 करोड़ है. तो ये कैश और बैंक बैलेंस मैं यहां पे आपके असेट में बता रहा हूं. यहां पे अभी आई एम गोइंग टू शो ऑन योर असेट साइड कैश 1 करोड़ एंड बैंक बैलेंस 4 करोड़. टोटल इज एब्सोल्युटली 5 करोड़. अब ये तो असेट हुआ. अब बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द ओनर बाय इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट, मींस at the same time it is also called as capital. Yes or no my dear? And that capital is 5 crore. ये कैपिटल हम कितना बुलाएंगे? 5 करोड़. मैं आपको एक सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा हूं बेटा. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. बिजनेस आपने शुरू किया 5 करोड़ इन्वेस्ट करके. अब ये 5 करोड़ का बाफिकेशन आपने कैसे दिया? आपने कैश में दिया 1 करोड़ और बैंक बैलेंस दिया 4 करोड़. तो टोटल ऑफ असेट्स इज 5 करोड़, टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज आल्सो 5 करोड़. अब ये 5 करोड़ के साथ आपने बिजनेस शुरू किया. आपने खरीदा इससे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ताकि फैक्ट्री चालू हो पाए, मैन्युफैक्चरिंग आपका जो भी है वो चालू हो पाए. और मान लीजिए आपका लैंड एंड बिल्डिंग है 50 लाख का और प्लांट एंड मशीनरी है 50 लाख का. मतलब हाउ मच यू पेड फॉर इट? 1 करोड़. और ये दोनों आपने बैंक के थ्रू पे किया, आपने चेक दिया, 1 नंबर का ट्रांजैक्शन किया आपने. तो 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, 50 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, और ये सारा बैंक से पे किया आपने. अब क्या होगा? नाउ ऑब्वियसली योर बैंक बैलेंस विल रिड्यूस बाय 1 करोड़. व्हाई? बिकॉज यू पेड 1 करोड़. बट in replacement of this bank balance what you are getting immediately is nothing but a land and building and plant and machinery. तो अब इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? अब ये बैंक हो जाएगा 4 के बजाय 3 करोड़. तो यहां पे लिख रहा हूं, ये देखिए कैश में कोई चेंज है बेटा? कैश तो सेम रहेगा 1 करोड़, क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया अभी तक कुछ खर्च नहीं किया. अब बैंक हुआ 4 के बजाय 3 करोड़. और ये 1 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किया ये कहां पे आया? प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग. ये आया रेस्पेक्टिवली 0.5 CR एंड 0.5 CR, मतलब 50 लाख सीधा सीधा. और इधर ऑब्वियसली आपका कैपिटल जितना था उतना ही रह गया. कितना? 5 CR. तो अगेन टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपने बैंक से लोन लिया 5 करोड़ का, क्योंकि आपको बिजनेस को और पैसा चाहिए, इतने से कुछ नहीं होने वाला. तो कितना लोन लिया बेटा आपने? 5 करोड़ का लोन लिया आपने. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%. अब आईसीआईसीआई बैंक कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही. इट इज द बैंकिंग बिजनेस एब्सोल्युटली फॉर देम, सो दे विल चार्ज इंटरेस्ट. तो अब क्या होगा इक्वेशन? अब जो इक्वेशन है एज इट इज है. अब आपने कैपिटल लगाया 5 करोड़ का और कैपिटल आया कैश और बैंक के फॉर्म में. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, आपने आपके बैंक बैलेंस से लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 50 लाख का, और ऑब्वियसली बैंक बैलेंस उतने से कम हुआ. कैश बैलेंस को कोई चेंज हमने नहीं किया. अब कैपिटल तो उतना ही है, लेकिन अभी आपने बैंक लोन लिया बेटा कितना? 5 करोड़ का लिया, और आईसीआईसीआई बैंक से 14% से आपने लोन लिया. अब ये इक्वेशन क्या यहां पे चेंज करेगा? अब जो पोजीशन है वो सेम रहेगी बस, क्योंकि कैपिटल तो उतना ही है 5 करोड़, कैश 1 करोड़, बैंक 3 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 0.5 करोड़, लैंड एंड बिल्डिंग 0.5 करोड़. अब जो 5 करोड़ आएगा बताइए बेटा कहां पे ऐड करेंगे 5 करोड़? अभी बैंक लोन आया आपके पास. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, यस और नो? नाउ इट इज कैपिटल और इट इज आउटसाइड अ लायबिलिटी? यस, यस, दैट इज करेक्ट. दैट इज आउटसाइड अ लायबिलिटी. यू आर करेक्ट. ये आउटसाइड लायबिलिटी है, और इसको मैं बताऊंगा 14% आईसीआईसीआई बैंक लोन. यस शीतल, दैट इज करेक्ट. ये 5 करोड़ है. 5 करोड़ 14% आपका आईसीआईसीआई बैंक लोन बता दिया. अब ये 5 करोड़ इधर तो बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि असेट में आपका 5
करोड़ ही दिख रहा है, अब लायबिलिटी 10 करोड़ की हो गई बेटा। तो अभी असेट में भी कुछ ना कुछ तो बड़ा बड़ा है आपके पास। क्या लिया आपने? यस स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, आपने क्या लिया? बैंक लोन, करेक्ट। अब बैंक लोन लिया तो आपका कौन सा बैलेंस बढ़ेगा? यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका या कैश बैलेंस बढ़ेगा बेटा? क्योंकि आपने क्या लिया है? बैंक लोन लिया। किससे लिया? ICICI बैंक से लिया। कितने परसेंट पे लिया? तो 14% से लिया। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या ना? यस पूनम, यस दैट इज करेक्ट। यस आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो 3 करोड़ के बजाय अभी ये बैंक बैलेंस 3 करोड़ प्लस 5 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया है। And as you have taken loan, obviously your bank balance is bound to increase. So first is your cash 1 CR, second is your bank now 3 CR plus bank loan 5 CR. अब ये 8 करोड़ हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 50 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की। अब अगर टोटल करूंगा तो मेरा टोटल होगा लायबिलिटी का भी 10 करोड़, असेट का भी 10 करोड़, जो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा। कैपिटल 5 करोड़ है, 14% ICICI बैंक लोन 5 करोड़ है, कैश 1 करोड़, बैंक बैलेंस अभी बढ़ गया क्योंकि आपने बैंक लोन लिया 5 करोड़ का, पहले का 3 करोड़ और अभी का 5 करोड़, ऐसे मिला के 8 करोड़ हो गया बैंक बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा था वो 50 लाख का ईच है। नाउ योर टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज 10 करोड़। नाउ जस्ट इमेजिन दैट यू परचेस्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ द सप्लायर फॉर रुपीज 20 लाख। आपने रॉ मटेरियल किससे खरीदा बेटा? आपके सप्लायर से खरीदा। कैसे खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा। तो अभी भी 2 इंपैक्ट आएंगे, एक असेट पे, दूसरा लायबिलिटी पे। बताइए बेटा कहां पे इंपैक्ट आएगा? कौन सा असेट बढ़ेगा? आपने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा। किससे खरीदा? सप्लायर से। कैसे खरीदा? कैश या क्रेडिट? तो आपने क्रेडिट में खरीदा, मतलब पैसे आपने दिए क्या? नहीं। The amount you will be paying in the future, and that is how it is called as a creditor. Creditor is nothing but the supplier from whom you purchased raw material on credit basis. तो अभी आपने सप्लायर से खरीदा जरूर है लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया। और कितने का खरीदा? 20 लाख का खरीदा। तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आया? स्टॉक। आपके पास यस क्या आया? यस दैट इज करेक्ट राजवीर, दैट इज करेक्ट। दैट इज आपके पास क्या आया? आपके पास 20 लाख का स्टॉक आया। बट पैसा गया क्या? नहीं गया, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस। तो बताइए अभी इसका इंपैक्ट लायबिलिटी पे होगा या नहीं होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? असेट क्या बढ़ा? असेट तो हमने देखा क्या बढ़ाना चाहिए हमने? यस दैट इज करेक्ट। स्टॉक बढ़ाना चाहिए कितना? 20 लाख, और ये असेट बढ़ गया आपका। बट प्रॉब्लम ये है, ये स्टॉक के अगेंस्ट अभी तक तो आपने पेमेंट नहीं किया है। तो अभी स्टॉक के अगेंस्ट पेमेंट करने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी और इनकर की, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। ये 20 लाख। अब फिर से कीजिए टोटल 10 करोड़ 20 लाख लायबिलिटी, 10 करोड़ 20 लाख असेट। व्हाई? बिकॉज you purchase stock for which the amount will be paid in the future, it won't be paid right now. तो हमने क्रेडिटर बढ़ाए 20 लाख से लायबिलिटी साइड में, और उतना ही स्टॉक हमने बढ़ाया आपके असेट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक जो आपने खरीदा है रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली आप इससे प्रोडक्ट बनाएंगे और इससे प्रोडक्ट आप मार्केट में हायर प्राइसेस पे बेचेंगे। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और वी कैन से दैट टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब ये इक्वेशन को अगर मैं पूरी तरह से एक इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ये देखिए टीए इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो ये टोटल असेट्स में मेरे पास क्या क्या है, अगर मैं अभी के लिए ये जितने ट्रांजैक्शन लिखे थे उसको मैं बास्केट करूंगा एक इसी एक लाइन में, तो टोटल असेट्स में मेरे पास क्या क्या है? यस बेटा बताइए। यस पूनम, इट इज कैश बैलेंस, करेक्ट, प्लस बैंक बैलेंस, प्लस और क्या है मेरे पास? लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक। ये देखिए तो इतना सारा मेरे पास है, जो मैंने आपको वर्टिकल फॉर्मेट में वहां पे बताया, आप देख सकते हैं ऊपर भी है, अभी भी अवेलेबल है। ये देखिए तो यहां के असेट मैंने उठा लिए, इक्वेशन में डाल दिए। अब कैपिटल कितना बेटा मेरे पास? सेम जितना मैंने इंट्रोड्यूस किया था, 5 करोड़ है एज इट इज, एंड दैट इज कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। मेरे पास क्या क्या है? तो मेरे पास आउटसाइडर्स लायबिलिटी एक तो 14% ICICI बैंक लोन है, और दूसरा क्या है? कितने का है? 5 करोड़ का। क्रेडिटर्स कितने हैं? 20 लाख के। तो अभी टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। समझने में कोई दिक्कत है?
यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, बताइए बेटा, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी समझने में कोई दिक्कत है? It just simply says that every transaction will impact in such a way that always total assets is equal to total liabilities. It doesn't mean that always every transaction will have one impact on asset, another will be on liability. ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि इम्पैक्ट एक असेट पे हो दूसरा लायबिलिटी पे हो, लेकिन इम्पैक्ट किसी भी तरह से हो, टोटल असेट टोटल लायबिलिटी ये तो होना ही होना है। एक हो सकता है कभी कभार कि एक लायबिलिटी बढ़ी दूसरी लायबिलिटी घटी, एक असेट बढ़ा दूसरा असेट घटा, जैसे कि पहले ट्रांजैक्शन में हुआ था। आपने बैंक बैलेंस से लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 50 लाख का ईच, तो ऑब्वियसली वहां पे बैंक बैलेंस कम हुआ, मतलब एक असेट कम हुआ, कौन सा? आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, और आपके दो असेट बढ़ गए, क्या? लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी जो आपने खरीदे। उसी तरह से जब आपने लोन लिया तो इट इज इंपैक्टिंग ऑन लायबिलिटी एंड ऑन असेट साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपने बैंक लोन लिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और आपने बैंक लोन लिया मतलब आपका बैंक बैलेंस वहां पे आ गया, एंड बैंक बैलेंस इज नथिंग बट योर असेट इन टर्म्स ऑफ कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड फाइनली स्टॉक। और फाइनली जब आपने स्टॉक खरीदा आपके क्रेडिटर से, वो भी रॉ मटेरियल खरीदा, एट द सेम टाइम इट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वहां पे आपके क्रेडिटर बढ़ गए, और क्रेडिटर बढ़ने के साथ साथ आपका स्टॉक भी बढ़ गया। So hence total assets is equal to total liabilities. Again I am repeating, not necessary that every time it should be impacting on one asset and one liability. At times it will be impacting on both the assets. One asset may increase, another asset may decrease. One liability may increase, another liability may decrease. इस तरह से होगा, but ultimately total assets is equal to total liabilities as far as this particular accounting equation is concerned. और ये किस तरह से है? जैसे कि अकाउंटिंग में 0, 1, 2, 3 ये डिफाइन करके गए हैं मैथ्स में, सॉरी, तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर फंडामेंटल अजम्पशन। उसी तरह से ये अकाउंट्स का फंडामेंटल अजम्पशन है बेटा। क्या फंडामेंटल अजम्पशन है? दैट टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। यूट्यूब के बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, कुछ डाउट होगा तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। और यही यहां पे उन्होंने बताने की कोशिश की है दैट व्हाट इज ओनर्स इक्विटी इज योर कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब जब एक अकाउंटिंग इक्वेशन या एक चीज इक्वल टू में आपने लिखी होती है, तीन उसमें वेरिएबल होते हैं, तो आप दोनों की जगह बदल सकते हैं, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, उस तरह से ये चलेगा। जैसे कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी लिखा है, तो हम लिख सकते हैं टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि टोटल असेट्स से आप आउटसाइडर्स लायबिलिटी राइट हैंड साइड वाला इधर अगर ले लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर कैपिटल। और यही इक्वेशन उन्होंने भी दिया है जो आप ऊपर देख सकते हैं, ग्रीन जो उनका स्क्वायर दिया है उसमें ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू टोटल इक्विटी दैट इज असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। जो मैंने लिखा है वो देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। अभी उन्होंने जो लिखा है थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए बिकॉज इट इज जस्ट द बेसिक कंसेप्ट्स वी आर सीइंग। You may not get confused when you see the simplified version which I am writing. उन्होंने दिया है वो भी सही है, लेकिन अभी आप बेसिक्स देख रहे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो यहां पे कोई डाउट है क्या बताइए बेटा। और जरूर याद रखिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज टोटल लायबिलिटीज। इट डजंट मीन दैट always every transaction will impacting on one asset and one liability. It may impact on both the assets and it may impact on both the liability, but finally it is very true that टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। आखिरी में ये जरूर देखना है कि आपका असेट्स का जो भी टोटल रहेगा वही आपका लायबिलिटी का टोटल रहेगा। तो इसके साथ आज का हमने श्री गणेशा किया है एज फार एज दिस पर्टिकुलर lecture is concerned, and we are explaining what does mean by capital, what is meant by outsiders liabilities, and what is meant by total assets। ये तीनों को हमने इक्वेशन में डाला है और इक्वेशन बनाया टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे उन्होंने कुछ दिया है क्या दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न। तो चलिए आगे उन्होंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कन्वेंशंस दिए, उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने दी है कि कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए है। आप देख सकते हैं यहां पे देखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने उसी को कुछ अलग से फ्रेम करके दिया है। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 4 लाख एंड क्रेडिटर्स इज रुपीज 4 लाख 2 लाख सॉरी, बिजनेस का कैपिटल 4 लाख है और क्रेडिटर्स 2 लाख है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स का टोटल आपका असेट का टोटल होना चाहिए। कैपिटल 4 लाख के टोटल हुआ 6 लाख और इसमें
आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली क्रेडिटर है 2 लाख और कैपिटल तो 4 लाख है। तो इस तरह से उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन को पुट किया। तो यहां पे देखिए बेटा, ये दो चीजें दी है, 2 लाख का उन्होंने क्रेडिटर दिया है, 4 लाख का उन्होंने कैपिटल दिया है। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मार्किंग करके, 2 लाख का क्रेडिटर और 4 लाख का कैपिटल, ये दोनों को ऐड करके आपका टोटल असेट आ गया। देखिए टोटल असेट जबकि उन्होंने दिया नहीं है, जो इक्वेशन जो उन्होंने लाइन दी है उसमें सिर्फ बोला है कि बिजनेस का कैपिटल 4 लाख है और क्रेडिटर्स 2 लाख है। टोटल असेट्स हमने निकाले बाय पुटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसी के साथ दूसरा इक्वेशन दिया है, टोटल असेट्स 1.5 लाख, आउटसाइडर्स लायबिलिटी 50,000 एंड क्रेडिटर्स इक्विटी, क्योंकि यहां पे अभी उन्होंने क्या दिया, 2 चीजें दी, एक पूछी है, तो बार बार ये वही करेंगे, ये इक्वेशन को घुमा घुमा के आपको पूछेंगे बेटा। और इक्वेशन क्या है? टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हम इसको बुलाते हैं बेटा। तो अभी सेकंड इसमें क्या दिया आपको, टोटल असेट्स दिए 1.5 लाख, कैपिटल दिया, सॉरी आउटसाइडर्स लायबिलिटी दी 50,000 देखिए, और कैपिटल निकालने को बोला है। तो अभी ये प्लस सी निकालना है, तो ये जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लेके आइए, 1.5 लाख माइनस 50,000 हो जाएगा, है ना। अब ये प्लस 50,000 इधर बेटा माइनस 50,000 हो जाएगा, आगे आपका कैपिटल बचेगा। तो आपका कैपिटल कितना आया? 1 लाख इज इक्वल टू योर कैपिटल। ये इस तरह से निकालते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब 2 चीजें दी है तो एक तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। तीसरे इसमें उन्होंने दिया है टोटल असेट्स बिजनेस के है 5 लाख, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है 2 लाख, और ओनर्स इक्विटी कितनी है? देखिए आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी है बेटा? 2 लाख है, और टोटल असेट्स कितने हैं? 5 लाख है। तो ये देखिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो क्या क्या दिया है? 5 लाख आपके टोटल असेट्स उन्होंने दिए है, कैपिटल उन्होंने बोला नहीं है, और आपको आउटसाइडर्स लायबिलिटी उन्होंने देखे रखा है 2 लाख। फिर से वही कीजिए, ये प्लस को इधर लेके आइए, 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू योर कैपिटल, 3 लाख इज योर कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट द आंसर माय डियर, एंड आई होप यू आर गेटिंग इट फैंटास्टिकली, नो इश्यूज देयर। कुछ नहीं है बेटा, 2 चीजें देंगे, एक को निकालना है, इक्वेशन एक ही है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखिए ये टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी लिखा, उसके बजाय टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल लिख सकता हूं, टोटल असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटीज लिख सकता हूं, क्योंकि उधर की एक चीज इधर अगर लाऊंगा राइट हैंड साइड वाली, तो जो प्लस में थी वो माइनस हो जाएगी मैथ्स के हिसाब से, बेसिक मैथ्स है, बराबर है ना। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये लिखा है टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। मैं क्या कर रहा हूं, बस टोटल असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एक चीज मैं राइट में रख रहा हूं, बाकी की सारी चीजें मैं लेफ्ट में ले रहा हूं। अब उसी तरह से ये इक्वेशन मुझे ऐसे भी किया जा सकता है, टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये तीनों तरह से आप मूव कर सकते हैं, नो इश्यूज देयर, एंड लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। उन्होंने अलॉन्ग विद एग्जांपल यहां पे आपको बताया कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी किस तरह से ट्रू होता है, और आप इसको समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे आप जरूर मुझे यूट्यूब पे बताइए बेटा। यस शीतल, पूनम, राजवीर, यस रक्षा, एनी डाउट देयर? आपका पहला लेक्चर बेटा समझ में आ रहा है? यस ओके, नाउ गेट इट डाउन, इसको कॉपी कर लीजिए। ये पर्टिकुलर लिखना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और उसके बाद इन्होंने ये जो 3 एग्जांपल दिए इसको एज इट इज कॉपी करना है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी माय डियर, वरना मैथ्स और अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट है, फैकल्टी कर रहा है तो बल्ले बल्ले, और बाद में आप करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ध्यान में ही नहीं आता कि कहां पे आगे बढ़ना है। सो प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल। चलिए लिखिए बेटा, गिव द हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, और लिखना क्या है, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उन्होंने भी लिखना है बेटा, इट इज वेरी मैंडेटरी। चलिए लिखिए, लिखना क्या है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लॉन्ग फॉर्म लिख सकते हैं प्लीज, रादर लिखना ही है, लिख सकते हैं नहीं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, उसी को आगे हम बाफिकेट करेंगे, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस outsiders liabilities. Total assets is equal to capital plus outsiders liabilities.
तो इसको दो फॉर्म में आपको बताया मैंने इसी इक्वेशन को। आगे इसी को टर्न अराउंड करके नीचे लेके जाता हूं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल असेट्स माइनस, अब थोड़ा सा यहां पे मैं मैथ्स का यूज करता हूं। अभी आउटसाइडर्स लायबिलिटी को इधर लेके आता हूं। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये चेंज्ड फॉर्म हो गया। और उसी तरह से मैं लिख सकता हूं टोटल असेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि इधर तो दोनों प्लस ही है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए बेटा, मैंने 4 इक्वेशन बनाए उससे, ऑल पॉसिबिलिटीज आई हैव कंसिडर्ड, लेकिन एक ही बेसिक है मेरे पास। बेसिक क्या है बेटा जी? टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अब जो टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटी एक तो आपने जो पैसा डाला है उसको भी कैपिटल जो वो है उसको लायबिलिटी बुलाते हैं, और आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उसको भी आप लायबिलिटी बुलाते हैं। तो बस उतना बाइफिकेशन करके हमने उसका साइड चेंज कर दिया है। तो मैंने जैसे बोला ये चारों लिखिए, पहले लिखिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, बाद में लिखिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, उसके बाद फिर जो राइट हैंड साइड है मैं लेफ्ट में लेके आया, टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एंड टोटल असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी। द वे आई वांट, आई कैन जस्ट मूव देम, I can just play with them and change their side. Plus will become minus, minus will become plus, multiplication will become division, division will become multiplication. That we have seen n number of times till your 10th. नहीं देखा होगा तो अभी भी देखिए बेटा, अभी भी ध्यान दीजिए। बीत गई सो बीत गई, बची हुई को राख। अभी आप जरूर इसको कवर अप कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तीनों यहाँ पे जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं ये लिखिए, और एब्सोल्युटली उसमें कोई डाउट अगर है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? ये कोई डाउट है बेटा जी? पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, नाउ वी आर ऑब्वियसली गोइंग थ्रू द फैंटास्टिक जर्नी ऑफ लर्निंग बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अभी बहुत अच्छे कंसेप्ट्स आने वाले हैं जिसपे पूरा अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट बेस्ड है। जैसे कि मैथमेटिक्स बिना कुछ कंसेप्ट के इम्पॉसिबल है। हर सब्जेक्ट के अपने अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना फंडामेंटल होता है, उसी पे सब्जेक्ट स्टैंड होता है। तो अकाउंटिंग के भी अपने अजम्पशन है, अकाउंटिंग भी उस पे चलता है, बस वही हमें देखना है। बताइए यहाँ पे कोई डाउट है तो ये तीनों इक्वेशन लिख लीजिए बेटा जो आपके सामने दिख रहा है। तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे, कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख एंड क्रेडिटर्स रुपीज 2 लाख, देन assets is equal to liabilities plus capital. as of now वो टोटल इक्विटी को अवॉइड कीजिए, आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसीलिए एज ऑफ नाउ इक्वेशन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए बेटा जो हमने दिया है, दैट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एज ऑफ नाउ इतने में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए क्योंकि अननेसेसरी दिक्कत ना हो आपको, इसलिए तीनों एग्जांपल लिखिए अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशन व्हाट दे हैव गिवन, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। लेट्स से थैंक्स टू द स्टेट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने बुक अच्छा बनाया है, अच्छे एग्जाम्पल दिए, जो अच्छी चीजें उसको अप्रिसिएट करते हैं बेटा, उससे बड़ी अच्छी बात होती है अपने साथ भी। तो चलिए ये लिखिए 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 4 लाख, दैट इज द फर्स्ट थिंग गिवन। फिर सेकेंड उन्होंने दिया है इफ टोटल असेट्स आर रुपीज 1,50,000 एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी आर 50,000 देन लायबिलिटीज आर, और देन आउटसाइडर देन कैपिटल इज इक्वल टू, क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी दी है और टोटल असेट्स दिए है तो आपको बस कैपिटल निकालना है यहाँ पे, और कैपिटल है ऑब्वियसली दैट इज कमिंग रुपीज 1 लाख, क्योंकि आपका 50 लाख आउटसाइड लायबिलिटी है, 1,50,000 आपका असेट है, बस घुमा के उसको बताइए एंड योर कैपिटल विल बिकम 1 लाख। ये बताइए एज इट इज बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिए। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, यस दैट इज द सेम। एंड द लास्ट इज इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस इज 5 lakh, outsiders liability are 2 lakh, owners equity is how much? तो यहां पे भी वही इक्वेशन यूज कीजिए, दैट टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। यहां पे हमें निकालना है कैपिटल, तो कैपिटल को राइट में रखिए और टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी कीजिए। टोटल असेट्स 5 लाख है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी 2 लाख है, 5 लाख माइनस 2 लाख कीजिए और आपका कैपिटल आ जाएगा 3 लाख रुपए। तो दिस वे अराउंड इट इज सॉल्व्ड माय डियर। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या?
सब्जेक्ट हम कैसे भी पढ़ सकते हैं बेटा, नॉट नेसेसरी कि हम लाइव मैनर में पढ़े। अगर आपका फोकस है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दुनिया के कितने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। पूना में एक संस्था है कॉल्ड एज सारथी, वहां पे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कोई फाइनेंशियल पोजीशन है नहीं, वो पढ़ने नहीं जा सकते। यहां से बेटा 4 लाख लोगों ने एमपीएससी और यूपीएससी पास किया है, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बड़ा आप बोल सकते हैं पुअर है, फिर भी ये बच्चों ने इतना दमखम बताया। सारथी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन पुणे हु हेल्प्ड दीज स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज एंड टू skyrocket their life by passing MPSC and UPSC such difficult exams which are assumed in the Indian context। ये बड़ी difficult exam मानी जाती है। बस आपका फोकस की बात है बेटा, फोकस रहेगा तो ऑनलाइन क्या, पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ लेता है। नहीं पढ़ना है वो कहीं पे भी नहीं पढ़ता, उसको कहीं पे भी बिठाओ आप, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम देयर। चलिए, आई होप नो डाउट देयर। यूट्यूबर्स कोई डाउट है तो आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं बेटा, सो दैट आई कैन आंसर योर डाउट्स देयर। लेट्स सी द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज माय डियर। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? सी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अ लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि जहां पे फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, हम सबको पता है वहां पे कुछ एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। लोग मशीन पे करते हैं तो कुछ हो सकता है गड़बड़ हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, बट ये कंपेंसेशन कब मिलना चाहिए बेटा? अगर एक्सीडेंट होता है तो। ऑर्गेनाइजेशन तो ट्राई करेगा, बिजनेस तो ट्राई करेगा कि एक्सीडेंट हो ही ना, ऐसी कोई चीज ना हो। लेकिन अगर ऐसी चीज होती है, देन इन दैट केस ऑब्वियसली इट इज ट्राइड दैट, इट इज गोइंग टू बी सीन दैट, इट इज गोइंग टू बी इंश्योर्ड दैट कि ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन गलती से अगर एक्सीडेंट हुआ तो उनको फिर कंपेंसेशन देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्कमन्स कॉम्पेंसेशन फंड। इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम बुलाते हैं, वर्कमन्स कॉम्पेंसेशन फंड। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? अगर ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो ही ये लायबिलिटी इनकर होगी, बनेगी, वरना तो ये बस नाम की है, काम की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है एज लॉन्ग एज देयर वोंट बी एनी एक्सीडेंट इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कोई एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा तो वहां पे एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड देने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यही कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी यहां पे उन्होंने डिस्क्राइब की है, आप देख सकते हैं बेटा। A liability which may or may not, which may arise in future, depends on happening upon a certain event is called as contingent liability। अगर कोई हैपनिंग या नॉन हैपनिंग इवेंट होगा तो ही ये लायबिलिटी होगी, तब इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम बुलाते हैं। एज इट इज नॉट कंफर्म्ड और अ परफेक्ट लायबिलिटी, इट डजंट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लायबिलिटी बोल के कंफर्म्ड ही नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको बिजनेस के बैलेंस शीट में नहीं बताते। हम बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट लिखते हैं, एंड दैट इज रिटन एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एंड इट इज गिवन। Hence, therefore, it is not shown as on liability on the balance sheet, but it is shown by way of footnote to balance sheet simply as information। क्यों? क्योंकि अगर हो गई तो फिर पे करनी पड़ेगी, एक्सीडेंट हुआ तो, नहीं हुआ तो पे करने की कोई जरूरत नहीं है। As simple as that। A worker makes a claim for compensation of 5,000 against the business, and the decision is pending in the court of law। It may be a future liability for business on happening of an event that is court verdict। अभी कोर्ट में केस तो कर दिया वर्कर ने, अभी कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देता है? आपके फेवर में दिया तो आपको पैसा नहीं देने की जरूरत है एज अ बिजनेस, लेकिन अगर आपके अपोज में दिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर ये लायबिलिटी बनेगी आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, विच यू नीड टू शो ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों? बिकॉज दिस लायबिलिटी डिपेंड्स on happening of a certain event that accident हो गया, obviously उसने क्लेम किया है, तो अभी अगर डिसीजन देगा कि एक्सीडेंट हुआ है और आपने कंपेंसेशन देना बनता है वर्कर को, तो आपको देना पड़ेगा। कोर्ट अगर बोलेगा कि नहीं ये एक्सीडेंट तो फैक्ट्री में हुआ, ऐसा दिखता ही नहीं, कहीं बाहर हुआ है, तो ऑब्वियसली कोर्ट बोलेगा कि एक्सीडेंट कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड देने की जरूरत नहीं है। So this way, particularly this contingent liability is nothing but, my dear, a liability which depends upon happening or not happening of a certain event, and it is not a confirmed liability, it depends on happening of a certain event। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि अगले 5 मिनट में बारिश होने वाली है क्या, तो आप बोलेंगे सर अभी बारिश का सीजन है, बारिश तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट absolutely you need to say that yes 60% it may happen, 80% it may happen, some may say that 20% it may not happen।
isn't it? So that is nothing but it depends on happening of a certain event, and that is called as a contingent liability. It may or may not happen, and that is how it is not a confirmed liability. इसको हम contingent liability बुलाते हैं. ये contingent liability में कोई दिक्कत है? अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, याद रखिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट as far as entire accounting is concerned. तो हम आज देखेंगे गैप्स का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है. और ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं. व्हाट आर गैप्स? सो गैप्स आर नथिंग बट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. और इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. गैप्स को क्या बुलाते हैं हम? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जैसे मैथमेटिक्स में 0 1 2 3 4 5 है, मैं बार बार बोल रहा हूं. जैसे इसमें ABCD है क्योंकि अल्फाबेट्स है और हम इसका कोई नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से आया उसी तरह से बताना पड़ेगा. उसी तरह से अकाउंटिंग में क्या है? गैप्स है. अकाउंटिंग में अजम्पशंस है, फंडामेंटल अजम्पशंस, जिसको हम बुलाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसको गैप बुलाते हैं. इंडिया में गैप्स कौन बनाता है? इंडिया में गैप्स बनाता है ICAI. Yes, that is Institute of Chartered Accountants of India. ये बॉडी है इंडिया में which is responsible for framing these rules and advising any changes at any point of time if certain changes are supposed to be there, because gaps can be changed due to the passage of time, due to experience, due to change in the business. तो ये ऐसा नहीं कि गैप्स बड़े स्टैटिक है. कभी कभार गैप्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंज करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ICAI को है इंडिया में. तो ये जरूर याद रखिए बेटा, MCQs में काम में आता है. गैप्स का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये क्या है? ये फंडामेंटल अजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, जिसपे इंटायर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज स्टैंडिंग. गैप्स निकाल दो, अकाउंट्स गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि कुछ बेस ही नहीं है. तो बिना फंडामेंटल के सब्जेक्ट नहीं चल सकता. अगर कैन वी इमेजिन mathematics without numbers? Can we imagine a language without alphabets? Absolutely not, because those are the fundamental assumptions of that particular subject. तो यहां पे accounting के assumptions क्या है? Fundamental assumptions है gaps, and gaps are nothing but the principles, ground rules, ground realities, fundamental truth, or you can say that these are generally accepted accounting principles. और जो कैसे बनाए हैं? It is based on, obviously, you can say that experience, passage of time, जो expertise है उनके साथ ICAI ये बनाता है, that is Institute of Chartered Accountants of India. So all these gaps we are going to see. अब gaps की वजह से होता क्या है? What difference gap is going to make, that it is given here. Importance of accounting concepts. Number 1, reliable financial statements. Why? Because the rules followed by each and every business and enterprise is one and the same. अगर मैं बोल रहा हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी मेरा लॉन्ग टर्म असेट है, तो दूसरे भी बिजनेस बोल रहे यस ये हमारे लॉन्ग टर्म असेट है. मतलब उनके जो असेट थे, मतलब अजम्पशन बोलता है कि सारी चीजें शुड बी यूनिफॉर्म फ्रॉम वन बिजनेस टू एनी बिजनेस, सो दैट द बिजनेस रिजल्ट्स विल बी कंपेरेबल. वरना अगर आप कुछ और ही रूल फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और ही फॉलो कर रहा है, तो फिर तो कंपैरिजन का तो बेस ही नहीं है ना. You can compare only the things which are following one and the same rules. इसलिए comparability तभी possible है जब आप same rule वहां पे follow करते हैं. तो gaps देखते हैं one by one. यहां पे क्या दिए? Let's see what is the basic information about gap. Accounting is a means of communicating business results, absolutely, of business operation to various parties interested or connected. हमने देखा था एक लेक्चर में कि interested parties कौन कौन होता है बिजनेस में. तो उनको अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस के एज ऑफ नाउ असेट्स क्या है और liabilities क्या है एज ऑन अ डेट. एंड एब्सोल्युटली दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स टू मेक फर्दर डिसीजन मेकिंग इनटू द बिजनेस. तो देखिए यहां पे दिया है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. माय डियर, लिख के लीजिए कहीं पे, अकाउंटिंग क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस बोल पाता है तो सिर्फ अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि बिजनेस को क्या बोलना है? प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, असेट कितने, लायबिलिटी कितने, आया पैसा कितना और आना कितना है, देना कितना है और दिया कितना है. एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड बाय द
accounting. Hence, my dear, accounting is called as language of the business. इसको हम क्या बुलाते हैं? accounting को language of the business बुलाते हैं. और आगे देखिए क्या दिया है. सो लिख लीजिए ये बराबर लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग इज मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज और ऑपरेशंस, various parties interested or connected with the business, that is owners, creditors, investors, banks and financial institutions, government and other agencies. Hence it is rightly called as language of the business. इसलिए अकाउंटिंग को क्या बुलाया जाता है? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. आगे, accounting is not only associated with business but also with everybody who's interested in keeping an account of monetary transactions. Generally the term accounting refers to financial accounting. तो जो accounting की बात जब करते हैं तो इसको financial accounting ही माना जाता है. Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying and summarizing transactions of business concern in a systematic manner. वैसे हमने एक लेक्चर में देखा था कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. सो लेट्स सी फर्दर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट्स माय डियर. नंबर 1, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे अगर आप गैप्स फॉलो करते हैं तो. सेकेंड, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन. क्यों? आप असेट और लायबिलिटी जिसको बुलाते हैं उसी तरह के असेट और लायबिलिटी दूसरे बिजनेस भी बुलाता है, मतलब ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी है प्रेजेंटेशन में. जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये जनरली एक्सेप्टेड है as far as the entire business world is concerned. Proper information to each and every stakeholder and valid and appropriate assumptions. जो assumptions है वो valid है, appropriate है. सुनते टाइम, पढ़ाते टाइम आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ है. तो ये जरूरी है बेटा समझना कि गैप्स क्या है. तो चलिए गैप्स के बारे में लिखिए, 4-5 लाइन मैं बोलता हूं उतना ही लिखिए. गिव द हेडिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. एवरीबडी दीजिए हेडिंग, दीजिए बेटा. कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए. गैप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. गैप्स मैंने कैपिटल में लिखा है, अपॉस्ट्रोफी एस है, उसको स्मॉल वाला इसको स्मॉल कर देता हूं, ये थोड़ा सा कैपिटल लग रहा है. ये देखिए गैप्स, और इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिए बेटा. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. राइट डाउन फ्यू लाइन्स अबाउट दिस. गैप्स आर, yes, gaps are the fundamental accounting assumptions. Gaps are the fundamental accounting assumptions on which the subject is based. On which the subject is based. On which the subject is based. These are the ground rules. These are the ground rules oblique principles. These are the ground rules oblique principles oblique fundamental assumptions. These are the ground rules oblique principles oblique fundamental assumptions which are very much essential. Which are very much essential for every business. For every business. For every business. Gaps are formed and revised by. Gaps are formed and revised by. Gaps are formed and revised by ICAI. Gaps are formed and revised by ICAI. Gaps are formed and revised by ICAI.
That is Institute of Chartered Accountants of India. That is Institute of Chartered Accountants of India. That is Institute of Chartered Accountants of India. Accounting is, change the para. Accounting is language of the business. Accounting is language of the business. Accounting is language of the business. And business communicates its results, and business communicates its results, and business communicate its results through financial statements, which are prepared by using gaps, which are prepared by using gaps, which are prepared by using gaps. ये 5 लाइन 6 लाइन लिख दीजिए बेटा. इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट जो दिया है एज इट लिख लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, इसका मतलब है गैप फॉलो करने की वजह से क्या होगा. तो नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी आएगी. दूसरा, यूनिफॉर्मिटी आएगी. तीसरा, ये जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट है. चौथा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी. और पांचवा, वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस. सो राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स माय डियर. ये सारे पॉइंट लिख लीजिए. राइट डाउन क्विकली, इट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम. राइट, हेडिंग वही दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अभी अगले 45 मिनट में आपको मस्त टूर करवाऊंगा गैप्स का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़े आसान है. बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं, जबकि इसमें कुछ है नहीं. बड़ी आसान चीज है. सो एवरीबडी शुड पे अटेंशन टू दिस if they want to understand. But first finish writing down this one. 5 पॉइंट आप लिख लीजिए so that we can start this. Am I audible? YouTube students, can you hear me clearly? आपको आवाज आ रही है बेटा? YouTube पे जो बच्चे देख रहे, please reply me in the chat box. You are able to hear me? Any problem there? चलिए, लेट्स डिस्कस द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स. इसको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बुलाते हैं बेटा, कन्वेंशंस बुलाते हैं, प्रिंसिपल्स बुलाते हैं. बड़ा ध्यान से सुनना. हर एक कंसेप्ट, लगभग कुछ 10-12 कंसेप्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग है. आज मैं आपको सारे बताऊंगा और हम इसका राइटिंग भी करेंगे. बट याद रखिए, पूरा अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है. सो लिसन टू ऑल द कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम, और बड़े आसान है. सबसे पहला कंसेप्ट क्या है?
आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, इट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. द कंसेप्ट इज व्हाट एग्जैक्टली एंड व्हाट द कंसेप्ट ऑल अबाउट. द कंसेप्ट सेज दैट, कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली, लेट मी टेल एंड लेट मी टेल अदर नेम्स ऑफ द कंसेप्ट एज वेल. बिजनेस एंटिटी इज आल्सो कॉल्ड एज लीगल और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. इसको क्या बुलाते हैं बेटा? बिजनेस एंटिटी, लीगल एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. अपन सारे कंसेप्ट आज ही देखेंगे, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, क्योंकि फिर अननेसेसरी वो टेम्पो उसका ये हो जाता है और कल फिर बहुत टाइम चला जाता है. सो लेट्स फिनिश ऑल ऑफ देम इन वन गो. कंसेप्ट यहां पे कुछ भी लिखा हो, मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाइड क्रक्स बता देता हूं बेटा कि क्या है कंसेप्ट. सो कंसेप्ट इज, इन द आईज ऑफ लॉ, owner and business are to separate legal entities. What the concept is all about? In the eyes of law, owner and business are to separate legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay back to the. So owner has invested capital, owner has taken risk. So on this capital, obviously business will make profit, and that profit is payable by the business to the owner. At the same time, if owner withdraws certain amount for any personal things, then owner has to repay it back to the business that is drawing. So concept बड़ा simple है. In the eyes of law, owner and business are separate legal entity. ये owner है, ये business है. Left hand side आपका owner है, right hand side आपका business है. So owner and business are to separate legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner. So now owner has given capital, owner has taken risk. So on this capital, obviously profit need to be earned by the business and should be paid back to the owner or to the businessman. आप बोलेंगे business है an artificial entity, that is still law says that there should be two separate books of accounts, one for owner, another for business. Means the personal transaction of owner should not be recorded in business books of accounts, and business transaction should not be recorded in personal books of account. मतलब ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि कोई भेल ना हो, कोई मिक्सचर ना हो, कोई गड़बड़ ना हो. कंसेप्ट क्या है? ताकि दोनों अकाउंट सेपरेट रहे, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट रहे, बिजनेस अपना अपना प्रॉफिट लॉस आसानी से निकाल पाए, और पर्सनल ट्रांजैक्शन तो पर्सनल है, क्योंकि बिजनेस क्या एक सोल ट्रेडिंग छोड़ा तो पार्टनरशिप फॉर्म है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव फॉर्म्स है. सो इन द आईज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी. ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें हैं. ओनर जो कुछ बिजनेस को देता है, उसने ओनर को वापस देना. तो ओनर ने कैपिटल दिया, उस पर प्रॉफिट कमाना है और ओनर को वापस देना है, बिजनेसमैन को वापस देना है. उसी तरह से ओनर अगर कुछ विड्रॉ करेगा पर्सनल बेनिफिट के लिए या पर्सनल चीजों के लिए, दैट इज ड्रॉइंग अमाउंट विच इज विड्रॉन और गुड्स विच आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ओनर वापस देगा बिजनेस को, ताकि उसका कैपिटल ना ही ना रहे. एंड द बेसिक फंडामेंटल थिंग इन दिस पर्टिकुलर concept is there should be two separate set of books of account, one for owner, another for business, so that business transaction should be recorded in business account and owner's transaction should be recorded in owner of accounts, and there should not be any confusion about the same. Are you getting the concept, my dear? Yes. क्या डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है. क्या बोलता है? इन द आईज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस आर legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and vice versa. Vice versa का मतलब क्या है? Whatever owner withdraws from the business, owner is liable to pay it back to the business. That is nothing but the business entity concept, my dear. इसका सीधा साधा मतलब क्या है कि ओनर जो कुछ बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस वापस देगा ओनर को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और ओनर ने अगर विड्रॉ किया कुछ पर्सनल चीजों के लिए तो ओनर भी वापस देगा. एंड देयर शुड बी टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वन फॉर ओनर एंड अनदर फॉर बिजनेस, so that business books record business transaction and personal transaction should be recorded in personal books of accounts of the owner. यही यहां पे दिया बेटा, आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, और आपको यही पता लगेगा पढ़ने के बाद कि जो कुछ मैंने बोला है क्रक्स, यही वो आपको इलैबोरेट करके बता रहे हैं. The same is elaborated here, and that see what is business entity concept. अगर business entity concept क्या है आपको देखना है,
तो आप जरूर पढ़ लीजिए। व्हाट इज गिवन हियर, मैं आपके लिए एक बार पढ़ता हूं एज फार एज दिस कंसेप्ट इज कंसर्न, बट अगेन इट इज द सेम थिंग। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या दिया है। दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द और ओनर्स। एक बिजनेस और ओनर ये अलग अलग है, ऐसा ये बोल रहे, हमने वही बोला। दूसरा, दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने आपको बोला कि ओनर्स के ट्रांजैक्शन उसके पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। Hence the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her। अब हमने बिजनेस चालू किया ओनर बोल के, क्यों चालू किया बेटा? हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए उससे? यस, वी वांट प्रॉफिट, दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड बिजनेस। So why we started business? To earn profit, and that is why business is started। तो obviously जो कुछ आपने पैसा लगाया उस पे आपको प्रॉफिट चाहिए। According to this concept, only business transactions are recorded in business books of accounts। Personal transaction of the owner are not recorded in business books of accounts, but their transaction with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawal from the business for the personal use, will be recorded in the business books of accounts। It implies that business itself owns assets and owes liabilities। business के अपने asset है और business के अपने liabilities है। owes का मतलब to owe मतलब पे करना बेटा, और owns का मतलब ओन करना, possess करना। और उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया है, half of the building is used for business office and other half of the building is used for the residence of the owner or proprietor। एक बिल्डिंग है जिसका आधा पार्ट ओनर बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और आधा पार्ट अपने घर के लिए यूज कर रहा है, और उसका टोटल रेंट है बेटा बिल्डिंग का 50,000 रुपए। तो इसमें से 25,000 रुपए should be deducted as drawing from the proprietor's capital। पूरी बिल्डिंग का रेंट आप बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आधी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रही है, तो 25,000 का रेंट आप बिजनेस रेंट बता सकते। बचे 25,000 तो आपको ड्राइंग बताना पड़ेगा, या फिर आप में, क्यों? क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर है नहीं। बिजनेस में अगर बताना है तो आप बता सकते हैं सिर्फ 25,000 आज बिजनेस ऑफिस रेंट और बिजनेस building rent, as simple as that। So this is what the business entity concept, separate entity concept or legal entity concept says that in the eyes of law, owner and business are two separate legal entities। whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from the business, owner is liable to pay it back to the business। and that is what business entity concept, my dear। concept आगे आपको ये भी बताता है that there should be two separate set books of account, one for owner, another for business। that business transaction should be recorded in business books of account and personal transaction should be recorded in owners books of account, and they need not be mixed with each other। और ये एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है इन शॉर्ट। और यहां पे एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया है। लेट्स से एंटायर बिल्डिंग इज यूज्ड हाफ पार्ट फॉर रेसिडेंस। तो आधा पार्ट अपन बता सकते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर बोल के, क्योंकि आधा तो आपका घर है, एंड एक्सपेंडिचर फॉर योर रेसिडेंस और हाउस कैन नॉट बी शोन इनटू बिजनेस। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इंटायरली, ये पूरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट का आउटलाइन क्या है? दैट देयर शुड बी two separate set of books of account, one for owner, another for business। business transaction should be recorded in business books of account, and owner's transaction should be recorded in owner's personal books of account। and in the eyes of law, owner and business are two separate legal entities। whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from business, owner is absolutely liable to pay it back to the business there। so that is what business entity, separate entity या legal entity concept। बताइए बेटा, इसमें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप ये पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ना, और बताइए कोई डाउट है क्या। YouTube के बच्चे आप बता सकते हैं यहां पे कोई डाउट है कि बेटा? आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, अगर डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन। पूरा कंसेप्ट पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़िए, और कोई भी डाउट है तो जरूर बताइए।
Read it very carefully till the end. Read it once, twice, and do let me know for any doubts. कंसेप्ट ध्यान से 2 बार पढ़िए बेटा. Read carefully and let me know for any doubts. ये स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए बेटा. कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए. यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं कोई डाउट है बेटा तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए so that I can explain to you. यस, कोई डाउट है इसमें? यूट्यूब पे जो बच्चे बेटा कोई डाउट है प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. नहीं है डाउट तो नो डाउट बोल के भी आप टाइप कर सकते हैं. दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अस टू नो. चलिए, इफ नो डाउट वी कैन जस्ट मूव अहेड एंड गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट. देयर अगला कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट. Money measurement concept is very simple. It says that a business records always monetary transaction and obviously the financial statements records only monetary things. जो भी financial statements है जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन वन साइड, इनकम एंड गेन ऑन अदर साइड. और बैलेंस शीट में क्या बेटा? लायबिलिटीज एंड असेट्स. ये दो ही चीजें रिकॉर्ड की जाती है और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुलाते हैं. तो वट एवर यू रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. बिजनेस क्या रिकॉर्ड करता है? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. एंड ऑब्वियसली इट नेवर रिकॉर्ड्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. नाउ व्हाट इज मनी मेजरमेंट? सेज फर्दर that business records only monetary transactions which are expressed in the form of money. It doesn't record non-monetary transactions, though they are very important for the business. Further, it says that these days business is not limited to the Indian boundaries or Indian territories. It is extended to global frontiers. आजकल business इंडिया में नहीं है तो इंडिया के बाहर भी है. ऐसे केस में आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जिनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कौन से करेंसी में एक्सप्रेस करेंगे? बताइए बेटा. इन व्हाट करेंसी यू शुड एक्सप्रेस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बट याद रखिए आपका बिजनेस ओरिजिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपने बिजनेस कहां पे शुरू किया? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जैसे कि विप्रो है, टीसीएस है. ये बड़े बड़े बिजनेसेस है जो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है. तो जब भी ये एफएस प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. याद रखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बेसिक कॉम्बिनेशन है जिसको हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. इसी को हम क्या बुलाते हैं?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो बेटा अकाउंट्स, तो ये कौन से करेंसी में? रिलायंस जो इंडिया के बाहर भी है, टीसीएस इंडिया के बाहर भी है, विप्रो, एन नंबर ऑफ अदर कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले एंड सो ऑन। तो ये सारे केसेस में याद रखना है ये कंपनी का ओरिजिन कहां पे है। ओरिजिन कहां पे है मतलब फ्रॉम वेयर दीज कंपनीज हैव बीन स्टार्टेड। तो इसका आंसर एब्सोल्युटली ये है कि दीज कंपनीज आर स्टार्टेड इन इंडिया। As these companies are started in India, absolutely these companies' financial statements should be expressed into their home currency. ना कि US डॉलर, ना कि UK पाउंड, ये किसी भी इसमें एक्सप्रेस नहीं करते बेटा। जिन कंट्री से इनका ओरिजिन है, जहां से ये आते हैं, जहां से इन्होंने शुरुआत की है, उस पर्टिकुलर करेंसी में ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस कराएंगे, बताएंगे हमारा प्रॉफिट इतना रुपीज है, बताएंगे हमारे असेट और लायबिलिटी इतने हैं, एंड दैट इज व्हाट द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट 3 लाइन में बताता हूं बेटा। पहला, बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड इट नेवर रिकॉर्ड्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। सेकेंड, द बिजनेस दीज डेज इज नॉट लिमिटेड टू द Indian territory and it is becoming global day by day. In such a case, the financial statements of any business should be expressed into that currency from where the business has been originated, from where the business has been started. बस इतना ही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। देखो कितना बड़ा 2-3 पैराग्राफ दिया उन्होंने, वरना कंसेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल है। दैट बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, it doesn't record non-monetary transactions, though they are very important for the business. And next thing it says that as business these days is a global affair, the financial statements of any business should be expressed into their home currency and not any other currency. Done. इतना 2 लाइन में 3 लाइन में पूरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है बेटा, जिसका उन्होंने इतना पैराग्राफ दिया है। उसी से आपका बिजनेस एंटिटी भी आप बुला सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दैट इन द आइज ऑफ लॉ ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner and vice versa. And because of this accounting concept, there should be 2 separate set of books of accounts, one for owner, another for business. So personal transaction should be recorded in personal books of account of owner and business transaction should be recorded in business books of account, so that there should not be any mixture. और उसके साथ एग्जांपल दीजिए that let's say that a business is using a building, half of the building is used for residence of the owner and half is used for business, and rent of the building is 50,000. In this case 25,000 rent is only shown into business books of account as rent for the business, whereas remaining 5,000 is rent for residence, which is a personal transaction, should be recorded in personal books of account. और अगर आप बिजनेस बुक्स में ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसको, then that 25,000 should be recorded in terms of drawing, which will be deducted from capital, क्योंकि आप घर भी यूज करते और घर का रेंट भी बिजनेस से दे रहे, इसलिए। तो मनी मेजर कंसेप्ट 2 लाइन में बोला बेटा मैंने सिर्फ, that business records only monetary transactions and it never records non-monetary transactions. Second, business these days is global affair and hence the financial statements of any business are expressed in their home currency and not in any other currency. इतना सिंपल है, 2 लाइन का मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट है और लगभग 4 से 5 लाइन का बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। वैसे यहां पे क्या दिया है आप पढ़ सकते हैं मनी मेजरमेंट के बारे में। तो ये कंसेप्ट में कोई डाउट है? यस, शीतल, पूनम, स्नेहा, कोई डाउट है बेटा? राजवीर, अमर, यस, चिंतन, एनी डाउट? कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए बेटा। 2 कंसेप्ट हमने अभी देखे और दूसरा कंसेप्ट यहां पे क्या दिया है। पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा, पूरा डिटेल क्या दिया है वहां पे। दूसरा कंसेप्ट एंड पढ़ सकते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज गिवन। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, इधर उधर मत जाइए। जब ये कंसेप्ट चालू तो ध्यान से पढ़िए, जहां पे लिखने को बोला जाता है वहां पे लिखिए, so that the output will be one and the same though you are online or offline, that doesn't matter. तो क्या दिया है मनी मेजरमेंट? वैसे मैंने तो 2 ही लाइन में बोला आपको, उन्होंने कितना बड़ा दिया है देख सकते हैं।
but again crux is one and the same. This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in books of accounts. इसका सीधा मतलब कि only monetary transactions can be recorded in business books of accounts. Since money serves as the medium of exchange, transactions expressed in money are recorded and ruling currency of a country is the measuring unit of accounting. ये देखिए इन्होंने भी एक पैराग्राफ में कंक्लूड किया है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप जिसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें उन्होंने बोला है, since money serves as the medium of exchange, transactions should be expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. That's what given. Further, transactions which don't involve money will not be recorded in the books of accounts, that is non-monetary transactions. For example, working conditions in the work, strike by employees, efficiency of management, etc. will not be recorded in the books of account as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of business as money serves as a medium of exchange, or money serves as a common measure by means of which heterogeneous fact about the business are recorded. For example, if a business has 2 tables, chairs, the assets cannot be added to give useful information unless they are expressed in monetary terms कि कंप्यूटर्स 15,000 के टेबल और 2500 के चेयर्स अब जरूर मेजर किया जा सकता है. व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज दैट द बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस and it doesn't record non-monetary transactions, though they are very important for the business. For example, strike of the employees, work conditions of the relationship between employer and employee, honesty of the employees, ये सारे non-monetary है. तो भले इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता. एंड फर्दर the ruling currency or the home currency should be the medium of exchange for expressing the profit and loss account and balance sheet, that is financial statements of a company from where the business has been originated. उन्होंने 2 पैराग्राफ में बोला है. पहले पैराग्राफ में उन्होंने भी एकदम सटीक बोला है, जितना जरूरी है उतना ही बोला है. That is, we can say that to be very precise, है ना. हम बोलते हैं ना कि don't beat around the bush, stop beating around the bush. मतलब इधर उधर घूमना बंद करो, सीधा कंसेप्ट पे आओ, मुद्दे पे आओ. तो मुद्दा यही है that business records only monetary transactions. It never records non-monetary transactions, though they are very important for the business. For example, strike of employees, relationship between employer and employee. And further it says that the business should record its statements in its ruling currency or home currency from where the business has been originated. That is what all about. 3 लाइन में कंसेप्ट है. अब बताइए जी, कोई डाउट है क्या बिजनेस एंटिटी में और मनी मेजरमेंट में? जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं. कोई डाउट है क्या बेटा? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? गुड. चलिए तीसरा कंसेप्ट देखते हैं. मैंने बोला आपको कि ये कंसेप्ट मैं कल लिखवाता हूं, आज हम देखते हैं फटाफट 1 बाय 1. तो 2 ही देखे मैंने अभी तक, हमने 2 ही देखे. एक बिजनेस एंटिटी देखा और दूसरा मनी मेजरमेंट देखा. तीसरा कॉस्ट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द कॉस्ट कंसेप्ट? Cost concept says that an asset should be always recorded at its purchase price, acquisition price, cost price for which it has been purchased. Asset का वैल्यू उतना ही रिकॉर्ड करते हैं जितने में आपने उसको खरीदा. देर पहले मैंने शुरुआत में आपको एक एग्जांपल बोला था बेटा. बिजनेस हैज प्लांट एंड मशीनरी ईच बाय थ्रू. तो बिल्डिंग 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था अगर आपको याद होगा तो. ये जो असेट आपने खरीदे कितने में खरीदे? लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख, प्लांट एंड मशीनरी भी 50 लाख. तो कंसेप्ट यही बोल रहा है दैट द असेट्स इन अ बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेस प्राइस, एट देयर एक्विजिशन प्राइस और एट देयर हिस्टोरिकल प्राइस. डज इट मीन दैट द कार यू परचेस्ड इन 2015 फॉर रुपीज 50 lakh विल बी शोन एट 50 lakh इन 2024? नो. जो कार आपने 2015 में 50 लाख के लिए खरीदी बेटा, उसका वैल्यू 2024 में 50 लाख ही रहेगा क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज यू यूज द कार ऑलमोस्ट फॉर 9 years नाउ, बिकॉज इट इज परचेस्ड इन 2015 एंड नाउ इट इज 2024. भले आपकी BMW है, बड़ी कार है, बट एट द सेम टाइम
डू रिमेंबर, यस, इवन हम डू रिमेंबर खरीदते हैं और तो कार यूज करते हैं, तो कार की वैल्यू 2015 की अगर 50 लाख है तो अभी भी 50 लाख कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों कीप्स ऑन चेंजिंग? मतलब कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। जैसे कार यूज करेंगे कार पुरानी होती जाएगी। तो देयर इज अ कंसेप्ट इन अकाउंटिंग डेप्रीशिएशन, जिसको हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कंसेप्ट क्या बेटा? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कोई भी फिक्स्ड असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, तो इसकी वैल्यू वही नहीं रहेगी जो खरीदी थी। ईयर बाय ईयर वो डिप्रिसिएट होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी असेट आप खरीदे दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स प्राइस, परचेस प्राइस, एक्विजिशन प्राइस। मान लीजिए एक इंपोर्टेड कार मैंने खरीदी, इंपोर्टेड कार खरीदी, वैसे धोनी, सचिन तेंदुलकर ये लोग इंपोर्टेड कार खरीदते ही है, एक्टर एक्ट्रेसेस भी खरीदते हैं। मान लीजिए उन्होंने कार खरीदी 1.5 करोड़ की। कितने की कार खरीदी बेटा? 1.5 CR की, और उस पे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को पे की 2 करोड़ की। आप बोलेंगे ये तो बड़ी डेंजर बात है सर, कार 1.5 करोड़ और इंपोर्ट ड्यूटी 2 करोड़। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स। इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है देशी यूज करो, स्वदेशी यूज करो। बाहर की यूज करेंगे तो गवर्नमेंट क्या लगाएगा आपको? गवर्नमेंट लगाएगा आपको इंपोर्ट ड्यूटी। तो 2 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी, कार की कॉस्ट बनी 3.5 करोड़ रुपए। आप बोल नहीं सकते 1.5 करोड़ की कार है, आपको बोलना पड़ेगा कार कितने की है? कार 3.5 करोड़ की हो गई बेटा। कार कितने की है? 3.5 करोड़ की है। चेतन, आर यू गेटिंग दिस? कार 3.5 करोड़ की हो गई। अब क्यों? क्योंकि कार की परचेस प्राइस 1.5 करोड़ नहीं है, ये तो उसकी 1.5 करोड़ की प्राइस थी, उस पे आपने 2 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। इंडिया में आने तक आपने कार के लिए दिए 3.5 करोड़ रुपए। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही बोलता है दैट रिकॉर्ड द असेट्स, परचेस प्राइस, एक्विजिशन, and that is called as cost concept. Does it mean that every year you are going to record the cost? No, it is cost minus depreciation. हर साल आप ये कॉस्ट पे जो डिप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा वो लगाएंगे, क्योंकि कार जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे कार की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। डिप्रीशिएशन का मतलब क्या है? डिप्रीशिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू यूज ऑफ द असेट्स, वेयर एंड टियर एंड टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेडनेस। डिप्रीशिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है बेटा, आपका मोबाइल। आपने जो भी मोबाइल खरीदा हो उसके अगले 15 दिन में, 1 महीने में वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाता है। क्यों? उसका नया वर्जन आ जाता है। इट डजंट मीन दैट कि आप ये मोबाइल फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है, आप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज लिमिटेड है। हाँ, वर्जन की अगर बात करें तो ये वर्जन क्या हुआ बेटा? आउटडेटेड हो गया। एंड दैट इज हाउ, रिमेंबर दैट cost concept says that the asset should be recorded always at its acquisition price, purchase price or cost price. What does it mean? That the assets basic mechanism starts with its purchase price, acquisition price, cost price. इसी के साथ ये भी याद रखिए कि asset का cost price मतलब क्या? Purchase price of the asset plus any taxes on that asset plus any expenses incurred on that asset. मैंने आपको कार का, इंपोर्टेड कार का एग्जांपल बताया। कार की प्राइस तो 1.5 करोड़ है, लेकिन उसको आपने इंपोर्ट करने में इंपोर्ट ड्यूटी गई 2 करोड़ की, तो कार 1.5 करोड़ की हुई या 3.5 करोड़ की हुई? कार तो हुई बेटा 3.5 करोड़ की। और मान लीजिए आपके घर तक लाने में उसके आपको और 50,000 रुपए खर्च हुए ट्रांसपोर्टेशन में। वहां से यहां तक कार को ट्रांसपोर्ट करने में 50,000 रुपए खर्च हुए, मतलब 1.5 करोड़ कार का प्राइस, 2 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी और 50,000 आपने खर्च किए कार को यहां तक लाने में। सो कार्स टोटल प्राइस इज 3 करोड़ 50,50,000। क्यों? 1.5 करोड़ कार का प्राइस, 2 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द कार फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द प्लेस ऑफ बायर।
So because any expenses on purchase of car is incurred should be added into the value of the car. आप कार ही नहीं खरीदते तो ना आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस देने पड़ते. तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता क्या है? बड़ा सिंपल है. कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है द असेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट इट्स परचेस प्राइस, एक्विजिशन प्राइस और कॉस्ट प्राइस, but it doesn't mean that the cost price will be always recorded. Rather, the cost price will be the basis for recording the asset's value each and every year. That is cost price of the asset minus depreciation on that asset. उसी के साथ मैंने और एक कंसेप्ट आपको बता दिया कि जब भी आप कोई कैपिटल असेट खरीदते हैं, इसको कैपिटल असेट बुलाएंगे, है ना. कार कैपिटल असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल असेट है, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल असेट है. व्हेनेवर यू परचेस एनी कैपिटल असेट एंड यू पे एनी एक्सपेंसेस ऑन द same, expenses should be considered as part of the cost of the asset. ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या मानते हैं बेटा? पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते ही नहीं अगर आप कार नहीं खरीदते. जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेस ऑफ कार है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन कार है. तो ये एक्सपेंसेस होते क्या? नहीं होते. क्यों नहीं होते? कार नहीं खरीदी तो एक्सपेंसेस भी नहीं होते, है ना. That is how, do remember that if you are purchasing any capital asset and expenses are incurred on that transportation of the asset, import duty or any other supporting expenditure which is happening due to purchase of that particular asset, that should be added into the cost of the asset itself. अब देखते हैं यहां पे cost concept क्या दिया है. cost में बोल दिया, तो उन्होंने भी छोटा ही दिया बेटा, लंबा नहीं दिया है. चेतन समझ में आ रहा है बेटा? आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. यस, लाइव स्टूडेंट्स कोई डाउट है बेटा? बताइए. कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ते हैं. कॉस्ट कंसेप्ट क्या दिया है उन्होंने यहां पे? एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट और द परचेस प्राइस विच वी हैव सीन. जैसे मैंने आपको बोला था कि एसेट रिकॉर्ड करेंगे उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, परचेस प्राइस पे. Cost of acquisition will be the base for all further accounting. यानी जब भी आप आगे इसका डिप्रीशिएशन करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसका बेस क्या रहेगा? तो कॉस्ट ऑफ द असेट ही रहेगा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा. इट डजंट मीन दैट द असेट विल ऑलवेज शोन बी एट कॉस्ट. यस, इसका मतलब ये कि असेट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे आप बताएंगे. रादर इसका मतलब क्या है? इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड in its book value charging depreciation. हर साल आप depreciation लगाएंगे और depreciation लगा के आप asset का value बताते जाएंगे. इसका सीधा साधा मतलब है that every year you are going to show the asset at its cost price minus depreciation. उस मैंने आपको बता दिया that expenses for transportation of the asset, transportation of the fixed asset, installation of the fixed asset, bringing of that fixed asset, that should be added into the cost of the fixed asset itself. ये fixed asset के cost में ही add किए जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल बताया, आपने 1.5 करोड़ की कार खरीदी, 2.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया, 50,000 का उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिया, मतलब कार हुई 3 करोड़ 50 लाख 50,000 की. तो बताइए बेटा, ये तीनों कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? तो आज हमने क्या देखा? वी हैव सीन जस्ट 3 कंसेप्ट्स. नंबर 1, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट. सेकंड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. एंड थर्ड, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. इसी को हम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी बोलते हैं बेटा, याद रखिए. कॉस्ट कंसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. अल्टरनेटिव नाम याद रखिए, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, वरना बाद में ऐसा लगता है ये तो पढ़ाया ही नहीं, जबकि ये पढ़ा था आपने. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या फिर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी इसको बुलाते हैं बेटा. एग्जांपल देखिए, फर्नीचर परचेस्ड फॉर 3 लाख, सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इन केस द मार्केट वैल्यू गोज टू रुपीज 1 लाख और रुपीज 1,50,000, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. मान लीजिए फर्नीचर 3 लाख में खरीदा, खरीदने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये फर्नीचर की कीमत बड़ी कम हो गई, 3 लाख से सीधा 2 लाख 1 लाख हो गई. लेकिन आपने तो एक्चुअली 3 लाख में खरीदा है, आपने 3 लाख रुपए पे किए, उसका रिसिट आपके पास है, तो आप असेट तो 3 लाख में ही बताएंगे. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आज की वैल्यू मार्केट में कितनी है, क्योंकि आपने कितने में खरीदा, आपने कितना पे किया, तो 3 लाख.
तो असेट का वैल्यू आप कितना बताएंगे फर्नीचर का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में? 3 लाख ही बताएंगे। 3 लाख पे आप डिप्रीशिएशन चार्ज करते जाएंगे। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है और इसका वैल्यू 10 ये चलेगा, ऐसा बोल दिया उसने कि परफेक्ट 10 साल में चलेगा। कार कितने साल चलाते? नई कार लिए वाली। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कार? यूजुअली 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल होती है। मतलब 10 से 15 साल में कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पूरी तरह से डिप्रीशिएट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो कार आपने खरीदी 2015 में, मान लीजिए उसकी वैल्यू 50 लाख की थी, आपने 50 लाख में BMW खरीदी, उसका 15 साल का ही इकोनॉमिक लाइफ है। तो 2015 में खरीदी तो 2030 तक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2030 के बाद इसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। आरटीओ बोलता है 15 साल बाद ऐसी कार यूज करना डेंजरस है। क्यों? बिकॉज उसका सब खत्म हो गया, इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गया। इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या बेटा? यूजेबल लाइफ ऑफ द कार। कार का कौन सा लाइफ है? यूजेबल लाइफ ऑफ द कार, एंड दैट इज 15 ईयर्स। 15 साल बाद कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? जीरो हो गई। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट कंसेप्ट, दैट इज व्हेनेवर एनी असेट इज परचेस्ड, it should be shown at its purchase price, acquisition price or cost price. It doesn't mean that always each and every year the cost price will be shown in the asset, but rather minus every year's depreciation. उस तरह से आप कार का वैल्यू बताएंगे। मान लीजिए 50 लाख की कार है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको काफी टाइम से, और 15 लाख उसकी, 15 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ, आपको डिप्रीशिएट करना है, डिप्रीशिएट हो ही जाएगी वो ऑटोमेटिकली। डिप्रीशिएशन का मतलब क्या है? सिंपली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू यूज ऑफ द असेट, वेयर एंड टियर एंड टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेडनेस। मैंने मोबाइल बताया, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो टेक्नोलॉजिकल फटाफट आउटडेटेड होते हैं, है ना, क्योंकि नए वर्जन आते हैं तो पुराना वर्जन क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। सो दैट इज हाउ डिप्रीशिएशन, माय डियर। डिप्रीशिएशन इज नथिंग बट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ assets due to use of the assets, wear and tear and technological outdatedness. टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेडनेस का सीधा साधा मतलब है बेटा ऑब्सोलिसेंस बोलते हैं उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो असेट अभी यूज करने के काम का नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल फेंक देंगे, है ना, हम तो मोबाइल यूज करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो आउटडेटेड है। वरना तो हम अपन लैपटॉप यूज करते हैं, इसी जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं 2010 का ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यूज करते हैं। दैट वे अराउंड पहले 2007 का आया करता था, उसके पहले 2003 का आया करता था, है ना, वर्ड एक्सेल जो आता है कंप्यूटर चालू करने के बाद आपका। तो उस तरह से ये सारा है, आउटडेटेड होता है मतलब नया वर्जन आ जाता है तो बेटर है नया यूज करने का। इट डजंट मीन दैट कि वो तो हम फेंक देंगे। सीधा मतलब कॉस्ट कंसेप्ट का यही है, दो चीजें याद रखनी है। द असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, परचेस प्राइस, एक्विजिशन प्राइस। सेकेंड, does it mean that every year cost will be recorded? No, every year cost minus necessary depreciation on that asset, remaining value will be recorded in the books of accounts. Third, while purchasing any capital asset, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, any expenses incurred for installation, erection, bringing that asset from one place to another, all such expenses are capitalized. कैपिटलाइज का मतलब क्या है? ऑल सच एक्सपेंसेस आर पेड इनटू द कॉस्ट ऑफ द। एग्जांपल कार का, या 1.5 करोड़ की कार है, 2 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी है, 50,000 का उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, तो कार की वैल्यू हुई सीधा 50,50,000। 1.5 करोड़ का वैल्यू, 2 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी और 50,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से 3 करोड़ 50,50,000 की कार हुई बेटा। इस पे हर साल डिप्रीशिएशन, और साल के बाद कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? तो कंसिडर दैट एवरी ईयर 10% ऑन एन एवरेज डिप्रीशिएशन रहेगा बेटा। तो हर साल ऑन एन एवरेज कितना लगाना है? 10%। अभी 3 करोड़ का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? सीधी बात है, किसी भी चीज का अगर आपको 10% निकालना है तो बस उसका एक जीरो काट दीजिए। मैंने आपको बार बार ये सिंप्लीफाई करके बताया है। दिस इज 3 करोड़, राइट? तो इसके एक जीरो काट दीजिए तो आपका क्या बचा? 10% बचा। तो ये बचा 30 लाख रुपए बेटा। मतलब हर साल कितना डिप्रीशिएट करेंगे? 30 लाख। ऑटोमेटिकली 10 साल बाद 3 करोड़ जीरो हो जाएगा और
10 साल बाद असेट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. सो दिस वे अराउंड. अब ये जरूरी नहीं है कि 10% ही हो, कभी 12 हो सकता है, कभी 15 हो सकता है, बिकॉज जितना इकोनॉमिक लाइफ है उसके हिसाब से डिप्रीशिएशन का परसेंटेज भी डिसाइड होता है. दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट. उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. कॉस्ट कंसेप्ट में इतना याद रखिए दैट एन असेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस और एक्विजिशन प्राइस. फर्दर every year accounting will be followed on the basis of cost price minus depreciation year, and remaining value will be shown in the books of accounts. At the same time, whenever any capital asset is purchased, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, any expenses incurred on installation, erection, or at the same time transportation of such asset, all such expenses are added into the cost of the असेट. ऐसे सारे एक्सपेंसेस आपको असेट के कॉस्ट में ऐड करने हैं और इसको बुलाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर पेड ड्यू टू परचेस ऑफ द असेट. इस कंसेप्ट को हम बुलाते हैं बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. तो आज हमने कंसेप्ट कितने देखे? 3 ही कंसेप्ट देखे. व्हाट इज गैप? गैप्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. गैप्स आर फ्रेम्ड बाय ICAIs. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गैप कौन बनाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाती है. और गैप्स क्या है? ये फंडामेंटल अजम्पशन है, फंडामेंटल ट्रूथ है, बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके बिना अकाउंटिंग ए सब्जेक्ट आगे जा नहीं सकता. ये फंडामेंटल अजम्पशन CAI बनाता है, टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकता है अगर रिक्वायर्ड है तो. 3 कंसेप्ट हमने आज देखे. पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, 3 लाइन में प्रिसाइजली बताता हूं. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट इन द आइज ऑफ लॉ ओनर एंड बिजनेस आर टू legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from the business, owner is liable to pay it back to the business. And due to this, there should be 2 separate set of books of account, one for owner personal transactions of business, and one for owner's personal transaction and another for business transactions. There should not be any mixture between business transactions and personal transactions. For example, हमने देखा one building is there which is half used for business and half used for residence, and rent, so half of the rent is paid for business and half should be residence. आधी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में बतानी चाहिए, आधी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में बतानी चाहिए. लेकिन पूरी अगर बता दी आपने तो वो गलत है. तो आधी आप ड्राइंग में बता दीजिए इन दैट केस, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और आधा आप बिजनेस रेंट जरूर बता सकते हैं. Another concept is money measurement concept. In simple words, business records only monetary transactions in the books of accounts. It never records non-monetary transaction in the books of accounts, though they are very important for the business. For example, loyalty of the employees, working conditions, strike of the employees, etc. And further, money measurement says that as business is global affair these days, then the financial statements of the business, that is profit and balance sheet, should be expressed in their home currency. जो भी बिजनेस उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो उन्होंने उनके होम करेंसी में एक्सप्रेस करनी चाहिए, जो कि इंडिया का रुपीज है, यूएस का डॉलर है, यूके का पाउंड है. तो इंडिया का अगर बिजनेस रहेगा, इंडिया से आया होगा रहेगा, इंडिया से ओरिजिनेटेड रहेगा, तो उसने तो रुपये में ही बनाना है P&L और बैलेंस शीट. भले वो बिजनेस 10 कंट्री में है, 100 कंट्री में है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे रुपीज में. क्यों? क्योंकि बिजनेस ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, TCS, टाटा स्टील, टाटा एंड HUL, नेस्ले एंड सो ऑन. उसके साथ लास्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट. माय डियर, कॉस्ट कंसेप्ट बताता है दैट द बिजनेस शुड रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट देयर परचेस प्राइस, एक्विजिशन प्राइस और कॉस्ट प्राइस. बिजनेस ने अपने असेट की वैल्यू उनके कॉस्ट प्राइस पे, परचेस प्राइस पे, एक्विजिशन प्राइस पे बतानी चाहिए. And the cost price itself will be the basics for every year accounting. हर साल जो asset की प्राइस बताएंगे वो cost price पे ही बताएंगे. That is cost price minus every year depreciation. Any expenses incurred for purchase of capital assets, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car should be considered as cost of the asset. And that is what cost concept, my dear, historical cost concept और objectivity concept. बताइए अगर आपको कोई डाउट है बेटा. आपको कंसेप्ट जरूर ध्यान से समझ में आया होगा. कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, हाँ,
क्योंकि पहली बार है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नया है यह, एब्सोल्युटली नया है यह, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़िए, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बावजूद भी कोई डाउट आता है, यू कैन जस्ट आस्क टू मी अगेन इन टुमारोज क्लास। So I hope you are getting this. YouTubers, if you are getting this, please let me know in the chat box. It will teach us to go do better and better. Those who are watching on YouTube, तो YouTube में आप जरूर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, नई डाउट है, समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। That encourages us to do better and better. If we are not doing better or there are some chances for correction, जैसे अभी ने डाला था कि हिंदी में भी बताइए, तो मैंने हिंदी में भी बताया। वैसे तो हम यूजुअली हिंदी यूज करते ही है, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं कि पूरा इंग्लिश में समझ जाए, है ना। और भाषा तो बस कम्युनिकेशन का माध्यम है, आप तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। फिर हिंदी में क्या और इंग्लिश में क्या, पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। यूट्यूबर्स बताइए बेटा, कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ये तीनों कंसेप्ट में कोई भी डाउट है आप जरूर मुझे यूट्यूब पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड डू लेट मी नो एंड प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स देयर विदाउट फेल। इट विल रियली encourage us and help us to do better. And thank you and have a wonderful evening ahead. Bless you. See you tomorrow at 6 p.m. my dear.